أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر، آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ کل ہم نے منصوب میں لن دیکھے، حتیٰ دیکھے، اذا دیکھے۔ آج ہم جو ہے پھر سے مجزوم کی طرف جا رہے ہیں اور لام امر پڑھ رہے ہیں، جو تھوڑا سا ہمارا رہ گیا تھا، ویکنیس تھا، اس پہ زور ڈالیں گے۔ لام امر کا مطلب ہے جو انڈائریکٹ کمانڈ کہیں گے۔ انڈائریکٹ کا مطلب ہے ایک ہمارا فعل الامر ہے جس کے اندر ہم آمنے سامنے حکم دیتے ہیں۔ لام امر وہ لام ہے، وہ امر ہے جو غائب کے صیغوں کو، جن کو ہم نے سامنے کمانڈ نہیں دیے، یعنی کہ ہوا ہما ہم، کیا ہما ہننا، اور متکلم کے انا نحنو، ان کو کس طرح سے کمانڈ دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کو غیر معروف کہتے ہیں، اور جو ڈائریکٹ کمانڈ دیتے ہیں اس کو معروف کہتے ہیں۔ اس میں غور کرنے والی باتیں کیا کیا ہے، ذرا غور سے لکھ لیجیے یا اس کا فوٹو لے لیجیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس فعل کو، یہ جو کام کے لیے ہم تو فعل کا استعمال کریں گے، مضارع کا استعمال کریں گے، اور اس کے سامنے لام زیر لی لگائے گا۔ لام زیر لی لگانے کے بعد ہمارا جو مضارع ہے اس کے آخر میں جزم دیا ہے۔ یہ تو معلوم ہے نا آپ کو امر بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اس کو انڈائریکٹ کمانڈ کہتے ہیں، اور وہ فعل کے لیے دیتے ہیں جو ہم لوگ ڈائریکٹ کمانڈ میں جیسا بناتے ہیں اس میں نہیں دیا جاتا، جو بچ جاتے ہیں باقی کے 6 اور 2 8 صیغوں کے لیے یہ ہے۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ اس کو بنانے کا طریقہ ہے، فعل مضارع لیں گے، کون سے صیغے لیں گے؟ ہوا، ہما، ہم سے، کیا، ہما، ہننا سے، انا، نحنو کے۔ ڈائریکٹ جو کمانڈ دی تھی ہم نے وہ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا کے لیے دی۔ جیسا ہمارے پاس تنصر تھا، تنصر میں سے ہم نے کیا کرے تھے، کمانڈ بنانا تھا، تو ہم نے لام کلمے پہ جزم دیے تھے، علامت مضارع ہٹا دیے تھے، پھر پڑھنے نہیں آ رہا اس لیے حمزۃ الوصل لائے تھے۔ انصر، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، ایسے ہم نے 6 بنائے تھے۔ تو 14 میں سے 6 صیغے بنائے تھے، باقی کے 8 صیغوں کو آرڈر دینے کا طریقہ لام زیر لی سے ہے۔ آپ کو سمجھ رہا ہے تو ہاں بولیے، نہیں سمجھ رہا ہے تو نہ بولیے۔ ایک منٹ ریپیٹ کریے سر۔ یہ دیکھیے، یہ ہرے میں دیکھیے، ہرے میں جو ہے سیکنڈ پرسن ہے، حاضر کے لوگوں کو ہم امر بناتے تھے، اس کو ڈائریکٹ کمانڈ بولتے ہیں۔ تذہبو تھا، وہ تذہبو سے کیا بنایا ہم نے، اذہب، اذہبا، اذہبو، اذہبی، اذہبا، اذہبنا۔ ٹھیک ہے، یاد آیا کیا؟ جی آ رہا، جی آ رہا، کچھ بھی سر نہیں آ آ رہا رہا، سر، آ رہا، اچھا چلو۔
تو یہ حاضر کے صیغوں کو ہم کمانڈ دیا کرتے تھے پہلے، سمجھے نا؟ حاضر کے صیغوں کو ہم نے اس کے پہلے کمانڈ دیے تھے، یاد آیا؟ جی سر. تو حاضر کے صیغے ہو گئے تھے، تو یہ 6 اور 2 8 رہ گئے تھے نیچے کے. کون کون رہ گئے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا اور انا، نحنو کے صیغے رہ گئے تھے. تو یہاں پہ کمانڈ دینے کا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اس کو کمانڈ دینے کے لیے، آرڈر دینے کے لیے لی لگایا جاتا ہے، اور لی لگانے کے بعد میں کوئی بھی علامت مضارع ہٹائی نہیں جاتی ہے، خالی لام کلمے پہ سکون دیا جاتا ہے. لی یذہب، کیا بن گیا یہ؟ Yes, sir. لی یذہب کا مطلب ہے اس نے، ذہبہ کا مطلب کیا ہے؟ جانا چاہیے. جانا. ٹھیک ہے؟ ہاں، انہیں اگر آپ سے اگر پرمیشن مانگا تو ہم ایسا نہیں بول سکتے لی یذہب، اسے جانے دو. لی یذہبا، وہ دونوں نے جانا چاہیے. یا انہوں نے اگر آپ سے اجازت مانگے تو آپ بولے جانے دو دونوں کو. لی یذہبو، ان سب نے جانا چاہیے. لی تذہب، ایک مؤنث نے جانا چاہیے. لی تذہبا، وہ 2 مؤنثوں نے جانا چاہیے. لی یذہبنا، وہ تمام مؤنثوں نے جانا چاہیے. اب خود کو بولو، میں نے جانا چاہیے. لی اذہب، لی اذہب کے 2 معنی ہوں گے، میں نے جانا چاہیے یا مجھے جانے دیجیے. لی نذہب، یہ دیکھو ہم جائیں بولتے ہیں لیٹ اس گو، لیٹ می گو، لیٹ اس گو، آئی شوڈ گو یا وی شوڈ گو، یہ سب ہوتا ہے. تو شروع سے چین سے پڑھتے ہیں ہم. آپ کو میں نے خالی آپ کو پیچھے اسے لے گیا تھا کہ آپ کو یاد دلاؤ کہ یہ ڈائریکٹ کمانڈ انڈائریکٹ کمانڈ کیا ہوتے ہیں. تو ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ اس کو بولتے ہیں غیر معروف فعل الامر، لام و امر. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ دیکھیے بنانے کا. ذرا آپ بڑبڑ مت کرو، مائک کو مت ڈسٹرب کرو، سنو اور میرے سے بات کرو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو ابھی تک ہم نے جو کمانڈ دیے تھے وہ کس کس کو تھا بھائی؟ حاضر کے ہاں، مضارع. تنصروا، تنصرانی، تنصرونا. پھر فیمیل کے تھے تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تنصرو، تو مدد کرتا ہے یا کرے گا. یہ تنصرانی، تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے. تنصرنا، تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے. تنصرینا، تو ایک عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. تنصرانے، تم 2 عورتیں مدد کرتے ہو یا کرو گے. تنصرنا، تم تمام عورتیں مدد کرتی ہو یا کرو گی. ٹھیک ہے، یہ معلوم ہے نا. اب ہم نے اس کو بنائے تھے فعل امر، جس کو نام دوسرا بھی ہے، یاد رکھیں تو بھی چلتا، نہیں چلے تو چلتا. معروف، انگلش میں بولو ڈائریکٹ کمانڈ. ڈائریکٹ یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں. اور وہ بنانے کا طریقہ تھا کہ ہم نے 3 سٹیپ استعمال کرے تھے. پہلی سٹیپ یہ تھی کہ لام کلمے پہ جزم دیے تھے. اس کے بعد علامت ہم نے مضارع. علامت مضارع کو ہٹا دیے تھے. پڑھنے نہیں آ رہا، پھر ہم چیک کرے تھے عین کلمے کی حرکت کیا ہے. اس کے مطابقت میں ہم نے لائے تھے حمزۃ الوصل.
اور उसकी हरकत एडजस्ट करे थे, ये हो गया उनसुर। हाँ, अब उसके बाद क्या करे थे हमने, ऐसे ही यहाँ पे भी करे थे, ये नून गिर जाता, हज़फ ये है। हाँ, तो बना था ये उनसुरा। फिर यहाँ पे करे थे हमने, माशाल्लाह, अब आप जान गए, नींद खुली है। उनसुरो, फिर यहाँ पे भी ता निकाले थे हमने, और यहाँ पे नून गिराए थे, उनसुरी। फिर यहाँ पे भी करे थे सेम, नून गिरा के ता भी गिरा के। जी जी, उनसुरा। अब यहाँ पे क्योंकि ये उनका हज़फ़ी नून है, सबूती नून है, तो इसको गिरा नहीं सकते, ता गिर जाएगा। हाँ, ये 6 सीगे हो गए हमारे। अब लेकिन बाकी के जो बचे हुए 8 सीगे हैं, उनको भी तो हुक्म देना पड़ेगा ना। कोई आदमी घर पे बैठा है तो अपन कैसा बोलेंगे, सामने तो ऑर्डर दे नहीं सकते उसको। फिर हम बोलेंगे अरे भाई उसने मदद करना चाहिए। चाहिए। अरे भाई जरा, और तो बाजी जरा रहम करो, बंद करो आपका माइक। हाँ, अगर हमारे सामने कोई शख्स नहीं है तो हम उसको हुक्म दे सकते क्या? नहीं नहीं दे सकते, नहीं दे सकते सर। नहीं दे सकते, तो किसके जरिए उस तक का हुक्म? जरा आपको सोचिए, आपके भाई साहब कभी कभी दुबई में रहते, अब सामने तो नहीं होगा, सामने वालों को हुक्म दिया हो गया, अब दुबई में वाले को कैसा बोलेंगे? तो आप आपके भाई को बोलेंगे, दुबई जा रहा उन्हें, अरे उसको बोलो यार, जरा जाकर बोलो, उससे मदद करना चाहिए। इसको बोलते हैं खैर मारूफ। हाँ, गैर मारूफ, गायब को कहना, गायब को कहना करने के लिए, और हुक्म अम्र का हुक्म देना, लगाना है। और फिर और क्या लगा रही है, हुक्म से। हुक्म दे रहे चाहिए, बल्कि उसको चाहिए कि मदद करना, तो हुक्म ही हो हाँ, रहा ना। उसने चाहिए मदद करे। हाँ, लामे अमर। अब इसके अंदर एक दूसरा भी एक पहलू आता है, ये वो नजमा मदद करना, वो मदद करना चाह रहा है, आप बोलेंगे उसे मदद करने दीजिए, लेट हिम हेल्प, ये दोनों काम में आता है। उसे मदद रुकारेगा को करने दीजिए, ये भी हुक्म होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ये कैसा बनाते, जो आपका भाई यहाँ नहीं है दुबई में, उसको कैसे हुक्म? बाकी छोड़ दो, आपका भाई यहाँ नहीं है, उन्हें दुबई में है, तो उसके जरिए काम करवाना है, उसको हुक्म छोड़ना है। ठीक है, अब उन्हें मदद नहीं कर रहा अम्मा की, और भाई बैठा है दुबई में, उसको बोलो अरे अम्मा की मदद करना चाहिए रे, तेरे अम्मा ने तेरे को इतने दिन तक का 22-25 साल पाली, तू पहचान रच ली उसको। बात समझ में आई आपको? जी तो सर। वो करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे हम बाकी के सीगे जो रह गए। बात समझ में आ गई आपके? जी। हाँ, ये क्यों है, ये पहले समझो क्यों है। तो ये निकाल लेता हूं मैं, ये पूरे हो गए हमारे। इसको डायरेक्ट कमांड बोलते हैं, आमने सामने आंखों में देखकर सेकंड पर्सन को देना। हाजिर वालों को जो अम्र देते हैं उसको बोलते हैं मारूफ। इंग्लिश में बोलो, मारूफ नहीं आता तो डायरेक्ट कमांड, आमने सामने कमांड, जो सामने नहीं है इनडायरेक्ट कमांड। समझ में आ गया? उसको गैर मारूफ बोलने का। अच्छा, तो अब गैर मारूफ बनाने का हमको, तो उसको काम चालू करेंगे अपना। तो कौन से गैर, आपने गायब किससे का बोलो? यंसुरु, ठीक है। हाँ, जी। दूसरा क्या है? यंसुराई, और यंसुरून, ये हो गया। एक मर्द के लिए गायब ही है ये,
یہ دو ہی ہے اور یہ دو سے زیادہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا غائب عورتوں کا بولو. تنصرو تنصرو تنصرانی تنصرانی. شاباش. تنصرنا تنصرنا ینصر اتنے دن پڑھ کے باجی تم پھر زیرو سے گئے. ینصرنا ینصرنا. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ. اب یہ 6 ہو گئے جو غائب ہے. اب 2 رہ گئے. خود کو دینا ہے اپنے کو. انصرو 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 ننصرو ننصرو انصرو ننصرو. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ پورے کے پورے 6 اور 2 8 ہے. ابھی 8 کو حکم دینے کا بڑا آسان طریقہ اور اس میں 3 سٹیپ نہیں ہے 2 اسٹیپ. تو پہلا کیا کرنا ہے اس کے لیے کیا لگانا. لی لام امر ٹھیک ہے. ہاں لام و امر بولتے ہیں اس کو. یہ لانے کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ کرنا ہے کہ اس میں بہت علامت مضارع کو ہٹانا نہیں. کیونکہ علامت مضارع کا استعمال ہے نا اس کو بولنا ہے. سامنے والا ہے تو آسان ہے. انصر وہ سمجھ آتا اپن ذرا مدد کر رہے 2 دکھ رہے تم تو مدد کرو گے. سب جگہ مدد کرو رہے ایسا رہتا. انگلش بولتے ہیں نا ہیلپ یو ٹو ہیلپ ایسا. لیکن یہ سامنے نہیں ہے اس لیے ان کا صیغہ برقرار رکھنا ہوگا. یہ جیسے کہ اس سے ہے صرف یہ پیش ہٹا کر بولو لینصر بولو ختم. آگے ہو گیا اس میں مدد کرنا چاہیے. ایک غائب مرد نے مدد کرنا چاہیے جو دبئی میں ہے. دکھ رہے ہیں نا لوگ. اب وہ چاہیے کہ کھائیے کہ کیا کیا اردو بولتے بولو. اب یہاں پہ بھی سیم دو. یہ نون غائب کر دو. ملٹیپلائی اس کو کرو. لینصرا ینصرا لینصرو لینصرا لینصرو. بن گیا. کوئی اصل ہے کام لگتی اس کو نہیں. یہاں لا لو. تنصرو لتنصر لتنصرا تنصرا اب یہ لینصرو نہیں لینصرا مدد دے. لینصرنا جو تو ان کا جو ہے یہ نون ثبوتی ہے. ثبوتی نون ہے. ان کو ہٹا نہیں سکتے ہے نا. لینصرنا آ جاؤ. لانصر لننصر. یہ لکھ لو. آپ لکھ کر پکا کر لو. تو بنانا بہت آسان ہے. جب بھی آپ کو لام کلمہ اپنا لام دکھ رہا ہے لام زیر نہیں دکھ رہا ہے اور آخر میں پیش کی جگہ پہ جزم دکھ رہا ہے یا نون حذفی نون گر گئے ہیں اب سمجھ جانا یہ آرڈر ہے. چلیے آگے چلو بھائی. جی سر جی. یہی کہانی ہے لکھی ہوئی. پڑھو. پہلے مضارع ہاں بولو پڑھو. لام میں پہلے مضارع کو لام مظلوم امر کر پہلے دے گا. مضارع کو مجزوم کر دے گا. ہاں کسی کام کا کسی حکم کام کا حکم دینا یا التجا کے لیے استعمال ہوتا ہے. التجا کرو. ارے کرنے لیجیے مہربانی کرے دوستو ایسا بھی آتا ہے. جی لام امر یا امر حکم یا التجا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگ رہے تو ہم لوگ التجا کر رہے ہیں اور سامنے والے کو بولے تو آرڈر دے رہے. ربی زدنی علما. یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر لیکن گڑ گڑا رہے.
प्लीड कर, समझे? तो ये जो है डायरेक्ट के लोगों के लिए करना है। अब इसके अंदर, हाँ चलो पढ़े, अच्छा पढ़े, तो यहाँ तक पढ़ो, अब यहाँ पे पढ़ो ना। सिर्फ गैब और मुतकल्लिम के पैरों के लिए इस्तेमाल होता है। अभी अपन ने सिर्फ गायब और मुतकल्लिम के से का इस्तेमाल करें, तो क्या लगा रहे आप? लामे अम्र। लामे अम्र। अब ऊपर का पढ़ो। कुरान मजीद में जगह लाम अमर अपनी अच्छी हालत में ली में इस्तेमाल हुआ है। और से सुनो, लामे अम्र अकेला ली करके सिर्फ 3 आयतें हैं जिसमें ऐसा आया, ठीक है? हाँ, जिसमें पेज, यहाँ से पेज चालू हो रहा। पेज क्या है? खाली ली लगाकर 3 ही आयतें हैं पूरी। फिर कैसा इस्तेमाल हुआ? इनडायरेक्ट कमांड के सामने हर्फ अत्फ 3 इस्तेमाल। पहला है वाव, वाव का मतलब और। अब लाम से ली के सामने वाव लगाए तो क्या बनाना पड़ेगा उसको? वल, वल यंसुर, और उसने मदद करना। आप समझे? तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। लाम से ली दिखा क्या अभी ना? हाँ, ये शक्ल बदल क्या गया? इसके ऊपर सुकून आया, किसके वजह से? वाव अत्वी के वजह से आया। तो आपको अब कुरान में ली नजर नहीं आएगा, आपको लाम सुकून वाला नजर आएगा। तो लाम सुकून वाला नजर आया तो समझ जाना वो ली है। आगे समझे? पेज समझे? इसको पीछे इसलिए खत्म है आपको समझाने। उसी तरह से दूसरा आएगा फल। तो बोलो फल यंसुर, तो उसने मदद करना चाहिए। पाक का मतलब तो इंग्लिश वर्ड सो, म्हणून आ गया। तीसरा आता सुम्मा, सुम्मा, सुम्मा बोले तो अब इसके बाद उसे मदद करना चाहिए, वैसे नंतर त्याने मदद केली पाहिजे। तो ये लटक के आते 3 चीजें इसको, लाम को वो लटक के आ जाती है, और लाम को लटक के क्या करते हो लोग? जज्म दे सकते उसमें। तो जिसको जानकारी नहीं है ग्रामर की, उन्हें बोलता ये क्या बात है, अब ये लाम सुकून लेके आ गया। लाम देखो कितने बार आ रहा, 5, 6, 7, 8 बार आ गया, अलग अलग शक्लों में आ रहा। ये एक शक्ल देखेंगे तो पहले देखना वाव का सुम्मा दिखा, लाम पे सुकून दिखा, तो बोलना इनडायरेक्ट कमांड है, ये तो गैर मारूफ हुक्म है। समझ गया भाई? और इसके अलावा क्या देखेगा? मुजारे के सीगे में लाम कलीमे पे सुकून देखेंगे आप। ली वल, बोलो ली हटाओ, वल यफ अल, हाँ ली अफल का मतलब, वल ये अफल का मतलब, और उसने मदद करना चाहिए दुबई वाले ने। फिर ऐसा भी आ सकता फल या फल, तो उसे मदद करना चाहिए। फिर आएगा सुम्मन, इसके बाद या फल, उसे मदद करना चाहिए। तो ये बोलेंगे और, तो उसके बाद यहाँ लिखा है देखो, हर्फा, वाव और सुम्मा, ये तीनों भी क्या है अपने, हाँ जोड़ने वाली चीजें हैं। अच्छा है, हाँ साथ लगाकर इस पर जज़म आ जाए, आएगा ये बड़ी हिकमत की बात है। अच्छा मुझे कोई बता सकते मैंने क्या क्या बोला? कोई समझा के बोल सकते तो आपका जरा आंखें खुल जाएंगी अब, क्योंकि सुनना अलग है, क्योंकि आपके घर में आराम से बिस्तर है, आप लेटे हुए हैं, चाय पीते पीते पढ़ रहे हैं, नहीं तो भेजे में जल्दी जाता नहीं। मारूफ सिंहों को लगता है सर ऑर्डर देने के लिए। हाँ अब ऐसा कर बेटे, मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं अनपढ़ है, आप मुझे पढ़ा रही हो, ऐसा बोलो, ताकि बाकी बच्चियां भी अटेंशन में आएंगे और पढ़ाने के काबिल होंगे, वरना वो दिमाग में जाने वाला नहीं। तो वो मुजारे को मजूम कर देता सर, जज़म ला देता है सर। पहले आप ये बोलेंगे कि हमारे पास 14 सीगे हैं,
मंजूम करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कितने सेगे हैं? 14। हमने डायरेक्ट करे थे तो 6 को करे थे, और 6 हमारे आंखों के सामने थे, हाजिर थे, तो वो कर दिए हमने। क्या क्या थे वो? उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ये 6 बाजू कर दो। अब 14 में से 6 गए तो कितने रह गए? 8। 8। अब 8 जो है गैर मारूफ का मतलब उन्होंने नहीं है, मारूफ का मतलब मालूम नहीं है, उन्होंने बाहर है, हमारे आंखों से ओझल है, आंखों से दूर है, थर्ड पर्सन है, गायब की शक्ल में है। तो गायब की शक्ल में इसका इस्तेमाल, ऐसा बोलो, गायब के सेगों के लिए और मुतकल्लिम के सेगों के लिए। वहां उर्दू में बहुत प्यारा लिखा हुआ है, आप उर्दू जानते इसलिए लिख के लाया मैं, लेकिन पढ़ते नहीं आप। पहला पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, जोर से पढ़ बेटे। फेल मुजारे को मजजूम कर देगा। हाँ, किसी काम का देना या इल्तिजा के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, सिर्फ गायब और मुतकल्लिम के सिगों के लिए इस्तेमाल होता है। यस, ये तीनों बातें टाइट बोलना पहले। अब ऐसा जो हुआ, डायरेक्ट लाम जी लगा के पूरे कुरान में 30 मरतबा। आगे पढ़िए, कुरान मजीद में सिर्फ 3 मरतबा लाम अमर अकेला आया, उससे छिटक के कोई नहीं आया। हाँ, आगे पढ़ो। वल फल सुमल, ये याद रखना, वल फल सुम्मल, वल फल सुम्मल, 10 बार बोलो, वल फल सुम्मल। ये दिखा तो समझ जाना कि ये लाम अम्र है, इनडायरेक्ट कमांड है। आगे बढ़ो। हर्फ फा, अतफी फा, हर्फ अतफ फा, हर्फ अतफ वाव, हर्फ अतफ सुम्मा, ये तीनों मिलकर लाम को पकड़ के आते हैं, समझ में आ गया? और लाम को जज़म कर देते हैं। लाम कर ली था ना हमने पहले, उन्होंने तीनों अटैक करे, तीनों के तीनों ने उसको बदल दी, क्योंकि जुड़ा के लिखना है, जुड़ा के लिखना नहीं आता था। अगर जुड़ा के लिखते तो कुछ नई बात बन जाती थी। बोलो, वाव और ली, क्या बोलते? वली 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 वली। आगे आपने तालीलात, वली, फली, सुमली, गलित दिखता था ये, तो अरबा ने बोले इसको सुकून लगा रहे, जल्दी आवाज कर रहा, तो मखरू है तू, आवाज अच्छी निकाल, बंदर की आवाज निकाल रहा, तो क्या होगा? वो वली जाके वल फल तुम। सोचना, बनाने वाले ने बनाते पे क्या सोचा होगा, ये आपत आई थी उसको। अब यहां सबका समझ में आया क्या? सब लोग 100 बोलो जोर से या नहीं बोलो जोर से? जी सर, जी आया सर, समझ में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समझ में आया। डबल से अच्छा समझ में आया सर। ओ हो, अल्लाह का एहसान। अब यहाँ पे धोखा जरा देख, ये है धोखा, रे धोखा, वार्निंग वार्निंग। ये ली 2 बार आता है ली 2 बार आता, जरा गौर से देखो, अरे भाई गौर से देखो, एक जज़म देता, एक नसब देता। हाँ, मैंने नसब बताया था कैसा रहता, रिजल्ट बताने के लिए कल बताया था मैं। अरे वो छोकरा वॉशरूम में क्यों गया? बोलो, उन्हें वॉशरूम में गया ताकि मुंह हाथ धोए, तो ये है लामु ताली, ये भी ली है, लेकिन इन्हें क्या करता? मुजारे के लाम कलिमे पे जबर देता, और इसको वल फल सुम्मल कुछ नहीं लगता। आया समझ में? तो लाम देर ली दिखा तो आपकी आंखें निकाल के क्या देखना? 3 चीजें देखना। इन्हें हर जगह क्या, हर जगह तो नहीं क्या करता? इसम आता उसके बाद, मुजारे नहीं आता, हर जगह के बाद में हमेशा इसम आता, तो हर जगह तो लफड़ा नहीं है। अब रहेगी 2 बातें, एक है ये आ रहा, तो चॉइस 2 है आपके पास, और पूरे कुरान में 3 ही मरतबा खुला है ली, अगर अमर में आया तो। वल फल ली दिखत बना रही तो अमर है, और वल फल ली नहीं दिख रहा, ली दिख रहा और पीछे जबर दिख रहा, तो वरना ये क्या है? रिजल्ट है। ताकि समझे कि नहीं? बताओ, ताकि उन्हें रीजन जाहिर करता, ताकि वो करे, ऐसा करे वैसा करे। ठीक है, उन्हें क्यों गया बाथरूम में? ताकि वो अपने मुंह हाथ धोए। अब एक बच्चा उठ के क्लास में से चले गया, क्यों कह रहे भाई? ताकि मेरे अम्मा को कॉल करूं, तो वो ली आएगा,
और ये ली कौन सा है? जज़म है, लाम अम्र है, ली यफल, ठीक है, उसने चाहिए कि करे, लेकिन उन्हें अकेला नहीं आता, वल फल सुमन लेके आता। तो आप बोलिए कितने आयतें आपकी खुलने वाली, आप कितना फायदा हो गया, एकदम क्लैरिटी आने वाली इंशाअल्लाह। तो ये भी लिख के रखिए, दोनों दिखते एक जैसे हैं, तीन है असल में, लाम जेर ली हर जर है, लेकिन हर जर के बाद नाउन आता, और वो क्या होता? मजरूर होता। और ली के साथ में जब भी आपको दिख रहा है नसब, तो उसको क्या बोलेंगे? रीजन बता देने वाला ना। बोलो समथिंग, वाई का रिजल्ट आ रहा हो, क्यों आ रहा? ठीक है, वाई का रिजल्ट है। टू वॉच हिज फेस, बोलो अपन बोलो व्हाई डू यू कम हियर, चलो क्या कर रहे हैं? टू लर्न लर्निंग, टू है, तो ये टू बोलता के अपन जंगली उर्दू बोलो मुंह धोने को, है ना? मराठी वाला बोलो डोंट बॉयला या मायला, जंगली होता मराठी वाला, क्या मायला कोण धुवायला गेलो की, तोंड धुवायला. भाई आपको सब जबान समझ गया ना? आप भूलते क्या? नहीं बोलते ना? जब मायला कोण धुवायला गेलो की, तो उसके लिए नॉर्मल है ऐसा बोलना, अपने लिए गाली दिखती हो, उनके लिए तो नॉर्मल है। सर ये अम्र इस मुजाहरे हाँ, पर ही बोलो, चाहेंगे, मतलब ये वो अब क्या इतने बोलेंगे, यार पूरी कहानी सुनकर, पूरी कहानी सुने रामायण, और बोले राम की बहन है क्या सीता? नहीं सर, तुमने मेरे आंख मतलब पे, तुमने मेरे ये आंख पे न्यूक्लियर बम डाल दिया। ली चाहिए कि जो आ रहा ना, तो वो गायब के लिए आएंगे कि हाजिर के लिए? अरे मेरी माँ, अम्र लगाते हैं मुजारे पे, माजी मरे वाला है। अब समझो एक आदमी मर गया, अपना रिश्तेदार नहीं, मर गया, अब उसको बोलो ना अरे उठ रहे, अरे मदद कर दे, अरे जा रहे, बोले नहीं होली है कैसा नहीं, मैं मर गया, मेरे को काम मर रहा है, माजी क्या मर गया, काम का मौत होगी। तो जरा सा अक्ल सलीम बोलते, क्या बोलते, कॉमन सेंस भी रहना चाहिए। लेकिन हमारे पास नांदेड़ में सरदार क्या है, कितने सरदार हैं नांदेड़ में? 5 लाख, 5 लाख सरदार जी उनके खोपड़े खोले तो 4,999 के भेजा निकलता नहीं। कॉमन सेंस क्या नहीं लिखी? तो बोलो कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन रहती। कॉमन सेंस की बहुत खेल लग गए, उसलिए उसको कॉमन सेंस बोलते हैं। नाम तो कॉमन है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो जरा जरा कभी कभी ये कान के बीच में जो है ना, उसकी मालिश करे तो भेजा चलता। हाँ देखो ये भी आया, ये क्या करेगा? जज़म लगाएगा, इसको बोलते हैं लाम अम्र। ये सेकेंड पर्सन को नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन। माशाअल्लाह, समझ में आ गया आपको? और डिटेल इसके अंदर लिखे, इनडायरेक्ट अम्र गैर मारूफ बोलते, तो क्या बोलते हैं? बस इससे ज्यादा कुछ भी। देखो यहाँ पे क्या लिखा, लाम appears immediately after wal fal wa thumma असा, इसलिए लाम क्या हो जाता? जज्मी हो जाता। ये जज़म का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ये अतफी को और लाम को जुड़ाने का गम है, वो पेस्ट है, वो चिपकाने का तरीका है, वरना वो लफड़ा करता हो, वली हो जाता। वली बोल तो फिर बोलता था वली है, चेले कहाँ है? वली भाई तो दिख रहे, शाल उड़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, लफड़ा चालू होगा। हाँ जरा ये पढ़ो बेटा, सब एक एक मिलके पढ़ो। इसका नाम है लाम अम्र। बगैर वल फल्ली की लगा रहा हूँ, ये वल फल्ली लगने वाला है, लेकिन बगैर वल के लगा के देखो, ली यक्तुब बोलो,
यहाँ देखिए एक गायब वर्ब में मदद करना चाहिए। लिखना अब यहाँ से लाम को हटाओ, यहाँ पे वल घुसाओ, बुझाओ। वल्यक और उसने मदद करना चाहिए। अब बदल मतलब हाँ लिखना चाहिए। माशाअल्लाह। अब देखो ली आया, या आया, पीछे ऊ आया, क्योंकि यहाँ का नून क्या था, वो हज़फ ही था, गिर गया। तो बोलो ली यक्तुबू, ली यक्तुबू। उन गायब सारे मर्दों ने मदद करना चाहिए। आया। अब वो हटा और फल लगाओ, ली निकालो, फल यक्तुबू। तो अब तुम्हारे लोग का फस, तुम फस करते ना, वो फस है। तो उन तमाम मर्दों ने मदद करनी चाहिए। करना चाहिए। हाँ ली तक कहा बोले तो अब औरत के लिए लिख सकते। एक गायब औरत की मदद करना चाहिए, तो ली लगाएंगे अपन, क्या लगे, वल वल सुम्मल लगाओ, सुम्मल बोलो, हाँ। इसके बाद वो औरत ने मदद करना चाहिए, इसके बाद आफ्टर दिस उसने मदद करना। अब लो, उन सब ने मदद करना चाहिए, औरतों ने। ली यक्तुबना, तो ये कौन सा नून है, सुबुत, बोलो सुबुती नून। हाँ, दो ही नून है, हज़फी सुबुती, पूरे 9 है। 9 में से 2 सुबुती है औरतों के, एक हाजिर वाले गायब वाले। पकड़ में आया तो लगाओ वल यक्तुबना। और उन सारे औरतों ने मदद करनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे लो, ला ली अब तो ली लगा के अब तो मैंने मदद करना चाहिए। और यहाँ पे फल लगाओ तो मैंने मदद करना चाहिए। फिर यहाँ लगाओ ली नक्तुब, ना या नहनु, हमने मदद करना चाहिए। तो सुम्मल लगाओ, सुम्मल, हाँ लक तो उसके बाद में हमने मदद करना, हमने लिखना, हाँ लिखना चाहिए जो भी है बेटा। आगे समझ में? माशाअल्लाह। अब इसकी वजाहत क्या किया हुआ है, लाम अम्र इस तरह से आने, ये आता है 3 ही मर्तबा कुरान में, लेकिन आने का तरीका उसका वल फल सुम्मा। एक गायब मर्द में लिखना चाहिए, यहाँ पे यक्तुब आया, फल एक गायब मर्द में लिखना चाहिए, और एक गायब मर्द में लिखना चाहिए, तो एक गायब मर्द में लिखना चाहिए, सुम्मल इसके बाद एक गायब मर्द में लिखना चाहिए। इस शक्ल में कुरान में आते ही। डन हो गया? ये बड़ा चैप्टर था, आपका ढीला हो गया था, ये अच्छा करके देना मेरा काम था। और ये 3 आयतें कुरान की जिसके अंदर वल फल सुम्मल नहीं है, ये 3 ही आयतें। और जो आयतें आई है उसकी इजरा कर लो, देखो फल यफ्रहु, हाँ, वहां का मतलब क्या है, हर्फ है ये, राइट। लाम अमर के साथ लग गया, फल हो गया उन्हें, तो बोलो बस उन्हें खुश होना चाहिए, तो उन्हें खुश होना चाहिए। समझे? अब यहां देखो वल तंजुर नफ्सुन, अब देखो वा का मतलब और, तंजुर का मतलब हर नफ्स को देखना चाहिए। हर नफ्स को क्यों लिखेंगे हम? ये नकीरा है बाबा, कोई खास नहीं है ना। हाँ, उसका मायने निकालेंगे। हाँ, ये अरबी है, मैथमेटिक्स है, दीवानों का नहीं है। अरबी का ग्रामर पढ़ने के लिए शेर का दिल चाहिए, फॉलो का काम नहीं। हाँ, ये आगे देखो हमारी गर्दानें लिख लीजिए आप। तो ये हरे वाले जो है मारूफ है, और हरे वाले नहीं है गैर मारूफ है। बहुत प्रैक्टिस करेंगे अब, फिक्र नहीं। चलो यहां से हमारा नया पुराना मिलकर अब तक जो पढ़े हुए लामा है, पूरे लाम को जिंदा करेंगे और पढ़ेंगे।
भाई जो इंग्लिश वाले हैं वो डिटेल लिख के ले लो। अब तक क्या क्या पढ़ा हमने? लम्मा, आज पढ़ रहे हैं ली। ली का मतलब क्या है? लाम अम्र गैर मारूफ, जो मजूम करने वाले पूरे कार्यकर्ते इतने हैं। लम्मा, इन का मतलब अगर। इन का मतलब क्या है? हाँ, इन शर्तिया है। इन क्या है? शर्तिया है, वो भी पढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ देखो भाई, ली के ऊपर जरा ज्यादा आसान करके लिखने का तरीका इख्तियार करे हमने। ऊपर का मत पढ़ो, नीचे पढ़ो। ली लगाए, यज़हबू था, यज़हबू का पेश हटाए और सुकून दिए तो बन गया ली यज़हब, उसने जाना चाहिए। अब अज़हबू को ली लगाए तो रिजल्ट निकला ली अज़हब, मैंने जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हफ़ज़ा, ठीक है। हफ़ज़ा का मतलब हिफ्ज़ करना, सिक्योर करना, मेमोराइज करना, याद करना। तो अपना है अहफ़ज़ू। अहफ़ज़ू, अहफ़ज़ू का मतलब मैं हिफ्ज़ करता हूँ या करूंगा। अहफ़ज़ू अल कुराना, मैं हिफ्ज़ करता हूँ कुरान मजीद को। अब इसको लगाना है ली और ऑर्डर दे देना है खुद को, अपने आप को बोलो नहीं कर रहे हिफ्ज़ तो करो। ली अहफ़ज़ू का बनेगा ली अहफ़ज़, ली अहफ़ज़ अल कुराना। आया समझ में सबको? मैंने हिफ्ज़ करना चाहिए, या किसी को बोलना है परमिशन के लिए तो मुझे कुरान हिफ्ज़ करने दीजिए। लेट मी मेमोराइज कुरान। इसके दो फायदे हैं, एक तो किसी को ऑर्डर देना, या खुद को तो ऑर्डर देते नहीं तो हमें सब अरे मेरे को कुरान हिफ्ज़ करने दो भाई, मैंने कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए। चलो आगे का। अब ये फा के साथ में ये तीनों भी कार्य करते, जो छिटक के आते उसको मेंढक के जैसा पकड़ लेते, तो फा को मिलाइए, ली यज़हब को मिलाना है। हाँ, जरा बक बक कर रहे हो, ये बक बकों को बंद करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे आप? हाँ, चलो गए हो। तो क्या करेंगे? फा लेंगे और ली को लगाएंगे। फल यज़हब, बोलो यज़हब, फल यज़हब। ये शक्ल में कुरान में मिलेगा आपको। फा का मतलब सो ही शुड है, तो उसने मदद करना चाहिए। पुराने जमाने की उर्दू, बस उसने मदद करना चाहिए। बस क्या रहता मालूम? यंजुरू, यंजुरू का मतलब देखने के लिए, वो देखता है, गायब का सीगा मुजारे का है, ठीक है। अब यंजुरू, यंजुरुल इंसानो, इंसान देखता है। अब इंसान देखता है तो ली लगा दो, ली यंजुरुल इंसानु। अब ये कौन सा ली है भाई? अब कुछ भी नहीं है। अब जरा इसको देखो, अब इसके अंदर तब्दील देंगे तो क्या आएगा? ली यंजुर क्या बनेगा? ली यंजुर, हाँ, ली के वजह से यंजुर बनेगा ली यंजुर अल इंसानो, इंसान ने देखना चाहिए। क्या बन गया ये? या फिर इंसान को देखने दीजिए, दोनों मायने होते इसके। इंसान ने देखना चाहिए, इंग्लिश में सो मैनकाइंड शुड सी। दूसरा मतलब तो लेट मैनकाइंड सी, देखने दीजिए उन्हें। नीचे आयत पढ़िए, फल यंजुरिल इंसानु। वो अब वहां पे अगर जज़म है तो पढ़ना नहीं आ रहा, इसलिए सहूलत के लिए देखिए, फल यंजुरिल इंसानु इला तामी। हाँ, तो आदमी ने गौर करना चाहिए, देखना चाहिए उसके खाने पर। या फिर तो इंसान ने देखे
उसे देखने दो, उसके खाने को समझ में आएगा उसको अल्लाह ताला ने क्या रिस्क दिया है। Let man look at its food. आ गया समझ में? चलो आगे अब पढ़ो क्या आया? यंजुरो, तंजुरो, हाँ क्या है? तंजुरो नफ्सुन। Nafsun. हाँ। तो ये गैर वाली औरत है इसलिए तंजुरो आया, क्योंकि आपके मुजारे के सीधे देखे तो यंजुरो, यंजुरानी, यंजुरूना, तंजुरो, ये है गायब मोनस का सीगा, इसलिए कि नफ्स जो है मोनस है। तंजुरुन नफ्सुन, हर नफ्स ने देखना चाहिए, हर नफ्स को देखने दीजिए, बनाओ ली लगा दो, ली तंजुर नफ्सुन, हर नफ्स को देखने दीजिए, या हर नफ्स ने देखना चाहिए, ली तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत ली गदिन, हर नफ्स ने देखना चाहिए गौर से उसने सामने क्या भेजा। कद्दमत का मतलब आगे, आगे क्या अपने भेजा? आगे क्या भेजा। आपकी आयतें एकदम ऐसे जाग जाएंगी ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह। लियाबुदुनल्लाह, लियाबुदुनल्लाह। अब देखो याबुदु ना था, पढ़ो याबुदु ना था, नून हाज़फी है गिर गया, लियाबुदुनल्लाह था, लियाबुदुल्लाह बन गया। तो आपके आंखें एकदम स्कैन करने वाले रहना, अरे यहाँ का नून कहाँ गया, कोई जमा के लिए है। उन सब ने अब अल्लाह की इबादत करना चाहिए, या फिर उन सबको इबादत करने दो। अब फल लगा दो, फल याबुदुल्लाह, तो उन्हें इबादत करनी चाहिए अल्लाह की। तो फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत। हाँ अगर समझ में आपको, ये आपको पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। तो उसे इबादत करने दीजिए, रब, लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, ये घर के रब की। तो लाभ अम्र का इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन इस्तेमाल हुआ था अपना, ये देखो यहाँ पे आ गया, दखला यदखुलु, दखला यदखुलु का क्या बनेंगे, यदखुलु का तदखुल, अदखुल, ठीक है। चलिए डायरेक्ट कमांड एक बार देख लीजिए, भूल गए होंगे तो आप मुजारे बनाइए, दखला यदखुलु, तदखुलु, तदखुलु, अदखुलु, नदखुलु, उदखुल, उदखुला, तुम दोनों खोलो, उदखुलु, तुम सब पर्दा खोलो, उदखुली, तो एक औरत खो, और उदखुलना, तुम तमाम औरतें खोलो। ये पुराना हम सीख चुके हैं, रूल लिखा है मैंने, हमजतुल वस्ल को किस तरह से हरकत दी जाती है, बहुत डिटेल हर चीज आपको है, खाली पढ़ने। तो ये हो गए डायरेक्ट कमांड के 6, उदखुलो, उदखुला, उदखुलो, उदखुली, उदखुला, उदखुलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू उदखुलो फी सिल्मी काफ़ा। हाँ ठीक है, आमनो उदखुलू, तो आमनो के साथ में उदखुलू आएगा तो आमनो उदखुलू बनेगा, मिल जाएगा। ये फेल अम्र पूरे आ गए। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, डायरेक्ट अम्र की है, अच्छा इनडायरेक्ट अम्र की भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हमने। ली अहफ़ज़िल कुरान, मुझे कुरान पढ़ने दीजिए, कैसा बनाए देखो, अहफ़ज़ु, अहफ़ज़ुल कुराना, ली अहफ़ज़ुल कुराना, अब वल फल सुम्मन लगा लो। ये स्टेप्स दिया है मैंने आपको, जितना भी आराम से करेंगे, जितना भी शौक से पढ़ेंगे, ये स्टेप्स कर लेंगे तो आप पढ़ा पाएंगे, इसलिए दिया है आपको पढ़ाना आना। अब फिर से मैं आपको दे रहा हूं लाए नाहिया, लाए नाहिया क्या रहता है जी, कोई बताओ मेरे को। इनकार या
इन कार्य नहीं देता बेटे कैसा नहीं तो जिसमें यानी हुक्म की नफी है। उसको बोलो ममनुआत, बोलो ममनु, अच्छा ममनू। प्रोहिबिशन, करने की मनाही है। करने की मनाही के लिए याद रखने का शॉर्टकट मैंने बताया था, ला और ता लगाने का, लात लगाने का, लात। हाँ देखो पढ़ो, तखरुजो, हाँ तखरुजो मतलब तू निकलता या तू निकल रहा है, उखरुज निकल, तो निकल। ला तखरुज तो मत निकल। ये आ गया ला और ता के साथ जिसकी पहचान है, लाल में लिखा है, ला के साथ ता दिखेगी तो बोलेंगे वो करने की मनाही है, और उसके अंदर भी जज़म आता है। तो ये और एक ला गया आपका, ला तहज़न, दुख मत कर, दुख मत कर। इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह सुब्हाना तआला है। गम न कर, दुखी ना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा, ऐ लोगों जिन्होंने ईमान लाए, मत खाओ ब्याज, किसी भी शक्ल में, बैंक से नहीं, ईएमआई नहीं, कोई नहीं, ब्याज के नजदीक नहीं जाना। लोग नए नए फार्मूले बताते हैं, ऐसा करे तो चल जाता, वैसा करे तो चल जाता, कुछ भी नहीं चलता। मना किया हुआ, जुआ खेलना, शराब पीना और ब्याज खाना टोटल बंदी है, बैन है। देखो और देखते जाओ। अब लाइन नाही अगर हमने थर्ड पर्सन में लगाए तो क्या होता, देखो ता नहीं आएगा या आएगा और करेगा। सामने वाले को बोलेंगे तो ता लगाएंगे, और सामने वाला नहीं है, गायब वाला, तो क्या लगाए, ला यखरुज, बोलो ला यखरुज तुल्लाबो क़ब्ला अन यखरुजल मदरस। तो स्टूडेंट्स ने जरूर जाना या जाना चाहिए, स्टूडेंट्स ने निकलना चाहिए, या ला लगाते तो स्टूडेंट्स ने नहीं निकलना चाहिए। अपन बोलते हैं ना स्टूडेंट्स ना जाए, स्टूडेंट्स ना जाए टीचर के पहले, तो ये अन मस्दरिया है, ये ना जाए। जरा ये देखिए, यदखुलु, यदखुलु का मतलब वो दाखिल होता है या होगा या हो रहा है। ली यदखुल, उसे दाखिल होने दो, उन्हें इजाजत मांग रहा तो जो उसको टीचर बोल रहा उसको आने दो। नज़हबु, वो जाता है, वो जा रहा है, वो जाएगा। ली नज़हब, जाने दो उसने जाना चाहिए, जाने दो। अब देखो तीनों भी आ गया, वल फल सुम्मल, फिर से लाया मैंने लाम तालीम और लामुल अम्र का फर्क करें। इधर देखो ली यदखुला, पढ़ो ली, वो एरो देखो, एरो किसको बता रहा, जबर को बता रहा। अब ली दिखा, जबर दिखते ही बोलो ताकि वो जाने या ताकि वो दाखिल हो। हाँ अब यहाँ देखो ली यदखुल, उसे दाखिल होने दो। अब लगाओ वल यदखुल, और उसे दाखिल होने दो। वल यदखुल, तो उसे दाखिल होने दो। सुम्मल यदखुल, फिर उन्हें दाखिल होने दो, उसे दाखिल होने दो। ये देखो यहाँ पे जरा ये तमाम नोट करके सेव करके रखो, ये फाइल मैं आपको पूरे सब एक साथ भेज रहा हूँ, फिक्र ना करो। और जरा पढ़ के देखिए इसमें, वल वाव के बाद लाम दिखा और जज़म दिखा, तो उसके आखिरी में देखो मजूम है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा, वल तंजुर, ये समझ जाना। अच्छा, और अपने नफ्स को देखने दीजिए उसने आगे क्या भेजा है। अब जरा यहाँ पे अपन सारे चीजों को एक जगह कर लेंगे। जरा देखो भला क्या क्या लिखा है। पहले लम है, अब पढ़िए लम यफ्ता, बोलो मायने बोलो।
लम आए तो क्या क्या करता, 3 काम करता। पहला काम करता, शक्ल बदलता, जज्म देता, माजी में लेके जाता, ताकत से इनकार करता। इनकार उर्दू पढ़ो। ये माजी में किसी काम की नफी के लिए आता है। इस काम के होने की कोई उम्मीद नहीं होती। हाँ, उसने ताकत से नहीं बोल रहा हो। इनकार की। यफ्ता का मतलब मैं नहीं, वो नहीं, उसने नहीं बोलो, खोला। उसने नहीं खोला। ये नहीं खोला। अब लम्मा लगाओ, लम्मा यफ्ता, अभी तक उसने उसने नहीं अब खोला। तक भी नहीं खोला। लाम अम्र लगाओ, चेक करो, ली सामने पीछे जज़म, ली यफ्ता, उसने खोलना चाहिए। ला में लाए नहीं लगाओ, ला उसे नहीं खोलना यफ्ता, चाहिए। हाँ नहीं खोला। नहीं खोलना चाहिए। आगे चलो, इन शर्तिया पढ़िए। ये फिर इन शर्त। बोलो, इन तजरिबो, इन तजरिबो अजरिबो, तू मारेगा, अगर तू मारेगा मैं मारूंगा तेरे को, शर्तिया ही। हाँ, इन तजरिब अजरिब, इनके साथ में क्या आएगा, जज्म आ जाए। यहाँ देखिए, अब जरा गौर से देखिए एक एक चीज। अब जरा ये आपको सब संभाल के रखना है मटेरियल। माँ जमाने माजी में इस्तेमाल होता, कोई असर नहीं करता। फिर ला जमाने मुजारे में आता, कोई असर नहीं करता। लम जबाने मुजारे में आता और जज्म देता और माजी में ले जाता, जोरदार नहीं करता। लम्मा मुजारे में आता, जज्म देता, अब तक नहीं कहता। लन जबाने मुजारे में आता, नसब देता और जरूर बजरूर नहीं करेगा कहता। लैसा जुमला इसमिया भी होता और नहीं है वो काम। ये तमाम चीजें बड़ी ही तफसील से पढ़े हैं हम, और ये पूरे फाइल में लिखे हैं। ये चौथी किताब है, इसका नाम है मुजारे के पूरे सिर। आपके पास भेजा है मैंने। अब ये देखो, यहाँ पे नसबी बनाने का तरीका, या फल या फला, देखो क्या, पहले 5 कट करो, या फला या तफला, तफला अफला नफला। अब हस्फी नून गिरा, या फला तफला, तफला तफला, हस्फी नून, या फलू तफलो, या फलना तफलना। अब ये भी नोट कर लीजिए, माजी में नफी करने के एग्जाम्पल अभी जो बताया मैंने, एक एक एग्जाम्पल भी दिया हूं मैं, तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। खरजल वलदो, एक लड़का निकला, माँ दाखिल कीजिए, माँ खरजल वलदो, एक लड़का नहीं निकला। सेकंड एग्जाम्पल, मुजारे के अंदर नफी, सादी नफी, यखरुजुल वलदो, एक लड़का निकलता है, निकलेगा। ला यखरुजुल वलदो, एक लड़का नहीं निकलता। लाम लाइए, यखरुजुल वलदो, लम यखरुज, यखरुजिल वलदो, लड़का हरगिज नहीं निकला। आ गया लम्मा, यखरजुल वलदो, लम्मा यखरज, क्या बोलेंगे, लम्मा यखरुजिल वलदो, लड़का अभी तक नहीं निकला। ये है इन शर्तिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसके वजह से पढ़िए, एक एक पढ़िए। फेल मुजारे को मजबूत करेगा और ये मुस्तकबिल के माने निकलेंगे। इंग्लिश में ये इफ है, इफ यू जंप यू विल डाई। फेल माजी में कोई ऐराबी तब्दीली नहीं करता, क्यों, तो माजी में तब्दीली होती चली, तो माजी में आया तो भी उसको मुस्तकबिल में फेंक देते। फेल माजी के लिए भी क्या है, अमूमन
मुस्तकबिल में तर्जुमा करते हैं। शर्त का एक जवाब होता है, उसको जवाब शर्त कहते हैं। इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस एक लिख लो आप, इफ यू स्टडी हार्ड, बोलो You will get If you success. study hard, यू विल सक्सीड, you will तुम succeed. कामयाब होगे। तो पहला हिस्सा क्या है इसका, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तू पढ़ाई करेगा। अब अगर इफ यू स्टडीड हार्ड बोले तो भी अगर तूने पढ़ाई किया तो कामयाब हो जाएगा। ये चीज याद रखो, पूरा इन आ जाता। देखो यहाँ जरा पढ़ के देखो, If इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। हाँ देखिए, पढ़िए, बिल्कुल आ जाएगा। इन क्या है भाई? शर्ती हाँ, इन शर्त जाजिमा। लाजिमा हाँ, और उसके बाद क्या है? जुमला फेलिया आना। जुमला फेलिया कौन सा है? मजलूम करने के लिए आना तो मुजारे आना। तो नून हज़फ़ी गिर गया, तंसुरूना था, और उसका मफूल आ रहा है अल्लाह। तो मायने निकाले, इतने टुकड़े का एक जुमला है। अगर तुम सब मदद करोगे अल्लाह की तो यंसुरुकुम, तो या बोले तो वो एक गायब, किसकी तरफ पड़ रही ज़मीर? अल्लाह की तरफ। तो वो मदद करेगा तुम सबकी। और यू सब्बित और वो जमा करेगा अक़दामकुम, तुम्हारे कदम को पक्का करेगा। तो ये दो जवाब, एक शर्त के दो जवाब आ रहे हैं। एक तो अगर आप तुम मदद करोगे अल्लाह की तो अल्लाह क्या करेंगे? अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपके कदमों को कायम करेंगे, जमा देंगे। ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसके दो टुकड़े होते हैं, हर्फ शर्त, अगर तू गया मैं भी जाऊंगा। गया नहीं आएगा, अगर तू जाएगा अगर मैं तू भी जाता है, तू जाता है तो मैं भी जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा। जाएगा। अगर तू जाएगा, जाता है, तो ये इस तरह से जवाब आते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं, देखो और पढ़े। अगर तू जाएगा मैं भी जाऊंगा। If you go, I will. देखो बेटे, मेरी बात सुनो। इफ उर्दू में अगर के मतलब बताओ, अगर का मतलब क्या है? शर्त उर्दू? है। उर्दू में अगर बोलो तो क्या? शर्तिया लफ्ज है ना। अरे शर्तिया मतलब बोलो जी, लफ्ज के मायने नाम मत बोलो। अगर का मतलब आने वाले मुस्तकबिल में कोई तो भी चीज होने का अंदेशा। अच्छा, तो वो फ्यूचर है। इफ का मतलब है विल। इंग्लिश में इफ का मतलब है विल, शैल, मे, माइट, वुड। हाँ, इफ लगाते ही आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि फ्यूचर टेंस है। इफ लगा के कोई भी जुमला लिखेंगे तो वो फ्यूचर टेंस है। उर्दू में भी याद रखो, इन लगा के बोलते ही समझ जाना वो लेके जा रहा मुस्तकबिल में। अगर किसी ने बोला मैं जा रहा हूं तीसरे मंजिल पर और वहां से कूदता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? अबे अगर तू कूदेगा ना मर जाएगा। अगर बोलेंगे कि जा रहा फ्यूचर में, अगर खुद ही पकड़ के आपको फ्यूचर में ले जा रहा है। हाँ, याद रखो, इफ इज इक्वल टू विल, शैल, मे, माइट, वुड। इसको अदवातु शर्त बोलते। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंडीशन। कंडीशनल टू। और पहला हिस्सा जो है उसको बोलते शर्त और दूसरे को बोलते जवाबी शर्त। जवाबी शर्त। जरा आप पढ़ेंगे, आप पढ़ो। इन तज़रिबनी, हाँ, अगर तुम मारेगा मेरे को, हाँ, अज़रिब का, मैं मारूंगा तेरे को। अब यहाँ पे गौर करने की, मुझे मारेगा। हेलो, बाकी सब छोड़ दो, पहले इन लगाने से तब्दीली क्या हुई देखो। तज़रिबु था, तज़रिब हो गया। ये डबल मजलूम वाला चक्कर है यहाँ पे, क्योंकि
इफ वाले सेंटेंस को अगर आप मजलूम करेंगे तो जवाबी शर्त भी मजलूम होना जरूरी है। अजरिब, बोलो अगर तू मारेगा मैं भी मारूंगा तेरे को, समझ में आया? अगर तू मारेगा मेरे को तो उर्दू बोलते तो मैं भी मारूंगा तो। इंग्लिश में तो नहीं बोलते, कॉमा लगाते। इफ यू हिट मी कॉमा आई विल हिट यू। इन तामल सालिहन तदखुलुल जन्नत, अगर हमने नेक अमल किए तो हम दाखिल होंगे जन्नत। आ गया? तो यहाँ पे गौर करो, इन लगाते क्या बात? नामलू है वो, नामलू हम अगर नेक अमल करेंगे, नामलू को जाके नामल हो गया। सालिहन सालिहन तदखुल, हाँ देखे दो जगह पे आपको जज़म दिख रहा। तो कल मैंने जो आपको स्लाइड बताते बताते बताया था, जाजिमा का सेकंड पार्ट है वो डबल जाजिमा होता है, दो वर्ग को जज़म देता है। क्यों? तो ये जुमले में दो टुकड़े होते हैं, एक शर्त एक जवाबी शर्त। तो आपको बहुत सारी चीजों की मैंने मालूमात दिया और मैं अब हाफिज साहब को दे देता हूँ, न वरना उन्होंने को घूर के देख रहे। ये एक चार्ट लिख लीजिए आप, यहाँ के आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये तमाम चीजें आपके लिए है, आपको पूरे के पूरे फाइल में कल वादा कर रहा हूं कि पूरे के पूरे आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप खोलना खोलना पढ़ते जाना। असल में प्रॉब्लम ये है, ये सब आने के बाद में हम पढ़ते नहीं, ये मेरी बड़ी फिक्र है। देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, माँ है, लम है, ला है, लन है, सब लगाओ और मास्टर बन जाओ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। इन नहीं है इसमें। इन बहुत है, आपको इतना सिखाऊंगा तो 8 दिन लगते इतना सिखाने का। आगे बहुत है बेटे, इन वाला भी है, लन भी है, लम भी है, लम्मा भी है, हर चीज के चार्ट्स बने हुए हैं, बड़े बड़े तख्ते हैं इसमें। और वो जो मेरी किताब है, क्या नाम है उसका, हिदाया, उसमें भी बहुत तफसीली चार्ट्स दिए हैं। पढ़ने वाला ही नहीं है, क्या करूं मैं। बी कसीर, बी कसीर। मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ये बहुत जामे आयत है। इस आयत का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% मुसलमानों को मालूम है। और गलत इस्तेमाल कर जी, इसका लफ्ज़न तर्जुमा भी मालूम है, या तो वो किसी मुसहफ में देख के पढ़े या फिर किसी से सुने, लेकिन जिंदगी में एक मर्तबा तो भी ये आयत सुनते या फिर इस आयत का तर्जुमा सुनते। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। इस आयत के अंदर हम आज का जो सबक है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इस आयत का मुख्तसर खुलासा भी करेंगे, और ये आप तमाम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आयत का जो हिस्सा है
سورہ بقرہ کی آیت ہے، شروعات جس لفظ سے ہو رہی ہے وہ ہے یذلو. یذلو ایک فعل ہے. اچھا سب سے پہلے کوئی ایک آپ میں سے بتائیے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو، بہتوں کو اور ہدایت کے گمراہ ذریعے سے بہت اس کے ذریعے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے اس کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ. اس سے گمراہ نہیں گمراہ ہوتے ہاں نہیں گمراہ ہوتے اس سے، ہاں سوائے نافرمانی مگر کرنے والے. فاسق لوگ. سوائے فاسقین کے. سوائے فاسق کے. جی اور کوئی ترجمہ بتائیے. یوزلو بھی کثیرن، وہ ذلیل کرتا ہے کہ گمراہ کرتا ہے، نہیں وہ گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرتا ہے کثیرن بہت سو کو، وہ یہدی بھی کثیرن، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت سو کو. وما یضل بھی، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو. سوائے فاسقوں کے، مگر فاسقوں کو. بہت اچھے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. شروعات میں ہے یضل به کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے به اس سے، کثیرن بہت. کثیرن کے معنی ہے بہت، لیکن اس کے پیچھے مفہوم ہے بہت ساروں کو، بہتوں کو. ویہدی به کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے، کثیرن بہت کو. وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس سے، الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے. سوائے فاسق کے معنی ہے گناہگار، گناہ کرنے والا. الا الفاسقین سوائے گناہ گاروں کے. تو جب بھی اپنی حدیں چھوڑیں. ہاں اپنی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ فاسق. حدود کو توڑنے والے، اس کے معنی بتاؤ، حدود کو توڑنے والے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ بہت ضروری. اپنے باؤنڈری یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود بہت ہیں، ساری بیماریاں کنٹینیوس. جی فاسق اللہ کے تعالیٰ معنی. اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل. میرے کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا بتائیں گے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے. اس سے بولے تو قرآن سے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی اور شک کے ساتھ چیزوں کی مثال دیتا ہے، تو جب یہ فاسق لوگ بولتے ہیں مکھی کی، مچھر کی مثالیں دیتا اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ، یہ بچی بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ ایک ادنا چیز کی مثال دے رہے ہیں. ادنا مچھر کی یا مچھلی. موزتن. وہ جو کافر ہے انہوں کیا بولے گا، کیا تمہارا اللہ تعالیٰ یار یہ مچھر اور چھڑ کے. تو اللہ تعالیٰ اس کے کانسیکوینسز بتا رہے. کیا بتا رہے؟ جو کافر ہے، فاسق ہے، پہلے بھٹکے والے ہیں نا، ان کو اور بھٹکا دے. اور جو علم والے ہیں، راسخن علم، جو علم میں ڈیپ ہے، ان کو اور ہدایت کے ساتھ بڑھاتا ہے. قرآن بھٹکاتا نہیں. کیوں بتا رہا میں کھڑے رہ کے یہاں پہ کہ 90% لوگ ایسے ہو گئے ابھی قرآن نہیں پڑھنے کے لیے یہ آیت کا استعمال کرتے ہیں. قرآن معنوں سے مت پڑھو، بھٹک جاتے. یہی سے اس سے میں کھڑا رہ کر یہ بتاؤں، عمل کرنا پڑے گا. عمل نہیں، اس کے لیے نہیں. ان کو یہ بہانہ ہو گیا قرآن معنی سے نہیں پڑھنے کے لیے. اس کو آدھی کوٹیشن کرتے، قرآن کو غلط کوٹ کرتے اور بولتے کہ قرآن معنوں سے پڑھے گا تو بھٹک جائے گا. اب آگے انہوں نے بولے بات صحیح ہے، عمل کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوگا، لیکن وہ باتیں پوری نہیں بتاتے. ویسے ہی بتاتے کہ مت پڑھو معنوں سے، گرامر مت پڑھو، تم بھٹک جاؤ. اور اس کی انٹری ڈائریکٹ دوزخ میں. ایسا منہ سے بولنے والا کہاں جائے گا؟
बगैर रुकावट के तो जहन्नुम में। हाँ जहन्नुम और दोज़ख एक ही है ना, ये कुछ अलग अलग है। छोटी दोज़ख है क्या जहन्नुम? जहन्नुम आग आग ही चलती। हमारा दोस्त को जानते अपने को सब एग्जाम्पल तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सर ने समझाए, उम्मीद है कि आप तमाम लोग समझ चुके होंगे। तो हम आयत की तरफ फिर वापस चलेंगे, हमारे ग्रामर की तरफ। सबसे पहला जो लफ्ज नजर आ रहा है युजिल्लु, यहाँ पे देखना है हमको, लफ्ज पहचानना है कि इसके अंदर से फेल कितने हैं। पहला जो लफ्ज है युजिल्लु, ये एक फेल है, फेल और फेल उसके बाद मुजारी। इसके बाद में फेल कहाँ है? यहदी यहदी, और और यूजुअली युजिल्लु फिर युजिल्लु। तो 3 फेल इस आयत के अंदर इस्तेमाल हुए, जिसमें से युजिल्लु 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ और यहदी 1 मरतबा। यहदी के बारे में हमने कल पढ़ चुके कि ये फेल मुजारे है और नाफिस है। इसकी बनावट कैसी हुई, इसकी तालीलात कैसी हुई, ये तमाम चीजें कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए। यहदी, और ये किस बाब से आ रहा नाफिस में? बाब जरा बस, बाब बाब जराबा जरा से। इसका माजी का सीगा क्या है? अदा अदा, अदा, और मुजारे यहदी यहदी, और इसका फेले अम्र क्या बनेगा? इहदी। तो ये है नाकिस, जो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ चुके। अब यहाँ पे वापस आएंगे युजिल्लु। युजिल्लु, इस फेल की तरफ अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे या एक, ज़ाद, दो और लाम तशदीद के साथ 3 हर्फ नजर आ रहे, लेकिन जो लाम है उसके ऊपर तशदीद नजर आ रहा, और अलामत मुजारे पे पेश है, आइन कलीमे के नीचे जेर है। तो ये बाब इफाल हो सकता, अलामत मुजारे पेश और लाम आइन कलीमे के नीचे जेर, बाब इफाल हो सकता सुलासी मजीद की। अब सुलासी मजीद की के अंदर 3 बाब ऐसे है जिसमें अलामत मुजारे पेश है और आइन कलीमे के नीचे जेर है, जिसमें से 2 बाब ऐसे है जिसमें आइन कलीमा बाब तफील में डबल हो जाता नजर आता हमको, और बाब मुफाला के अंदर फा कलीमे के बाद अलिफ नजर आता। बचा तीसरा बाब इफाल, जिसके अंदर जो हमजा उसके इजाफा होता वो मुजारे में नजर नहीं आता, उसकी सिर्फ निशानी ये है अलामत मुजारे पेश और आइन कलीमे के नीचे जेर। तो ये हो गया युजिल्लु, ये बाब इफाल का है, सुलासी मजीद भी है। अब जो लाम के ऊपर तशदीद नजर आ रहा, ये डबल की निशानी है, यानी कि लाम 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। अब 2 मरतबा जब कोई हर्फ इस्तेमाल होता मादे के अंदर, तो फिर वो गैर सही फेल में चले जाता, और गैर सही फेल की 7 किस्मों में से कौन सी किस्म हो जाती? मुजाफ मुज़ाअफ़। मुज़ाअफ़ एक ऐसा फेल जिसके मादे में 2 हर्फ एक जैसे आ जाए, उसको बोलेंगे मुज़ाअफ़। और मुज़ाअफ़ की भी तालीलात होती, जैसा हरफ इल्लत की तालीलात हुई थी, उसी तरीके से मुज़ाअफ़ फेल की भी तालीलात होती। आज हम देखेंगे कि मुज़ाअफ़ फेल की तालीलात किस तरीके से होती। तो आज का हमारा टॉपिक है मुज़ाअफ़, गैर सही फेल। मुज़ाअफ़ एक मुज़ाअफ़ है जो मुरक्कब के अंदर इस्तेमाल होता, उसके अंदर आइन नहीं आता, और यह है मुज़ाअफ़ जो गैर सही फेल की किस्म है, आइन के साथ मुज़ाअफ़। मुज़ाअफ़ यानी कि ऐसा फेल जिसके मादे में 2 हर्फ एक जैसे आ जाए। आप लिख लो,
मादे में आइन कलमे में लाम कलमे। हाँ, ऐसा फेल जिसके मादे में दो हर्फ एक जैसे हों उसको क्या बोलेंगे? मुजाफ। मुजाअफ। जल्ला मद्दा भी आता है सर, मीम दाल दाल मद्दा। जी, ये है उसकी मिसाल। मादे के हुरूफ में दो हर्फ एक जैसे आ जाए। पहला है ज़ा, नून, नून, ज़ाद, लाम, लाम, मीम, दाल और दाल, शद्दा, शीन, दाल, दाल, जिसका इस्तेमाल इनकी तालीलात में लगता। यहाँ पे दो हर्फ एक जैसे, यहाँ पे भी दो हर्फ एक जैसे। अब जब ये दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं तो इनकी तालीलात करना है। इनकी तालीलात के भी कुछ उसूल है, जैसा अजवफ के उसूल, मिसाल के उसूल, नाकिस के उसूल थे। उसी तरीके से मुजाफ के भी उसूल है, वो भी चार है, छोटे छोटे उसूल है। लेकिन उसूल सीखने से पहले ये जो दो एक जैसे हर्फ आ रहे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये फा कलिमा है पहला, ये आइन कलिमा है और ये लाम कलिमा है। किसी भी गैर सही फेल में हमने फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा ये लफ्ज का इस्तेमाल किए। लेकिन मुजाफ के अंदर अगर आइन कलिमा, लाम कलिमा हम बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि फिर आइन कलिमे पे कौन सा हर्फ है, लाम कलिमे पे कौन सा हर्फ है, क्योंकि दोनों भी हर्फ एक जैसे है। इस वजह से इन दो हर्फों को अपना अपना एक अलग नाम दिया गया। सबसे पहले वो नाम नोट कर लीजिए। पहला वाला जो यहाँ पे दो नून है, तो पहला जो नून है उसको बोलेंगे मिसले अव्वल। दूसरा है मिसले दुवम, मिसले सानी, दुवम नहीं, मिसले सानी, अव्वल और सानी। अगर हम इसको आसान नाम देंगे, मिसले अव्वल और मिसले सानी, इसको अगर हम शॉर्टकट इसका देंगे तो इसको बोलना है, मिसले अव्वल को बोलना है R1 और मिसले सानी को R2, R2। रिपीट 1, रिपीट 2। पहला हर्फ R1 है, दूसरा हर्फ R2 है। यहाँ पे भी लाम, लाम, तो ये पहला लाम क्या हो गया? R1, R1, दूसरा लाम R2, R2। और अगर इसको ग्रामर की जुबान में देखेंगे तो मिसले अव्वल, मिसले मिसले सानी। सानी। यहाँ पे भी दाल पहला है, क्या हो जाएगा? मिसले R1 R2, मिसले अव्वल मिसले सानी। यहाँ पे भी दाल है, पहला दाल जो है ये क्या हो जाएगा? R1, दूसरा R2, R2, मिसले अव्वल मिसले सानी, R1 R2, ये याद रखना है। अब हम इसके देखेंगे उसूल, इनके कायदे क्या है, इनकी तालीलात कैसे होती। इनकी तालीलात में सबसे बेसिक जो नाम इस्तेमाल होता वो है इदगाम। क्या नाम है? इदगाम। इदगाम। एक दूसरे इदगाम में एक अरबी लफ्ज है, एक दूसरे में मर्ज होना। मर्ज करना है, मिलाना, हाँ, मदगम इदगाम। करना।
ادغام کے معنی ہے ملانا، मिलाना مرج کرنا، آپس میں دونوں کو ملا دینا. جیسا تجوید کے قاعدے میں ہے ادغام، آواز کو ملانا، یا کی آواز کو نون کی آواز میں ملا دینا، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ادغام ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، مدغم کر دینا، اس قاعدے کا نام ہے ادغام. اب ادغام کے ذریعے سے ان کی تعلیلات ہوتی اور ان کے 4 اصول ہے. سب سے پہلا ادغام لازم، دوسرا ہے ادغام اختیاری، اور تیسرا ہے پورے ادغام ہے. ادغام ممنوع. یعنی کہ ممنوع، منع کرنا، اس کا دوسرا نام ہے فقو ادغام. جی سر. یہ 3 اصول ہے، ادغام لازم، ادغام اختیاری اور ادغام ممنوع. ادغام لازم کب ہوتا؟ R1 یعنی کہ مثل اول، ساکن ہو، اور R2 متحرک. R1 ساکن، R2 متحرک. دو نون آ گئے، پہلا نون مثل اول R1، دوسرا نون مثل ثانی R2. تو R1 پہ ساکن اور R2 متحرک، تو اب یہ دونوں مرج ہو جائیں گے. یہ ادغام لازم ہے، ایسی کنڈیشن میں مرج کرنا، ادغام کرنا کمپلسری ہے. یہ ہے ادغام لازم، اور اس کی تیار ہوئے والی شکل ایسی بنتی ظنہ. دوسرا ہے ادغام اختیاری، اور تیسرا ہے ادغام ممنوع. دوسرے سے پہلے تیسرا دیکھیں گے. ادغام ممنوع R1 متحرک، R2 ساکن. R1 پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، متحرک ہے، اور R2 ساکن ہے. تو یہاں پہ ادغام ممنوع ہے، ادغام بالکل بھی نہیں ہوگا، تعلیلات نہیں ہو سکتی. کیا مثال ہے سر اس کی؟ ایک مثال بتائیے سر ادغام ممنوع کی. زللنا، نہیں ہوتا نا سر، پڑھنے بھی نہیں آتا ویسے. زللتو، دو لام ہیں جس میں R1 پہلا والا مثل اول متحرک ہے، حرکت والا ہے، اور دوسرا لام جو ہے وہ ساکن ہے. یہاں بھی ویسی ہے، پہلا لام حرکت والا ہے، دوسرا لام ساکن ہے. R1 متحرک اور R2
साकिन। अब जो दूसरा उसूल है इदगाम इख्तियारी, R1 मुतहर्रिक, R2 भी मुतहर्रिक, R1 भी मुतहर्रिक, R2 भी मुतहर्रिक, यानी कि दोनों भी हरकत वाले, लेकिन उससे पहले वाला हर्फ साकिन। उससे पहले कौन सा आएगा? फा कलिमा साकिन है, तो यहाँ पे इदगाम इख्तियारी है। अब ये जो R1 है अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर कर देगा फा कलिमे पे, और फिर खुद साकिन बन जाएगा, और फिर वो जब साकिन बन जाता तो फिर इदगाम लाजिम में चले जाता। सर एक मिसाल क्या है ये? यज़लिलु। R1 भी मुतहर्रिक है, R2 भी मुतहर्रिक है, लेकिन उससे पहले वाला जो फा कलिमा है वो साकिन है, तो R1 अपनी हरकत को पीछे ट्रांसफर कर देगा, यहाँ जेर आ गया और यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। जैसा मुताबिकत, ये इंतकाल, मुंतकिल, हरकत ट्रांसफर करना। जी जी R1 मुतहर्रिक, R2 मुतहर्रिक, और पिछले वाला फा कलिमा साकिन। बस इतने छह उसूल इसके, खत्म हो गया। समझ में आया? तीन उसूल है, इदगाम लाजिम, इदगाम इख्तियारी और इदगाम ममनू। सिर्फ नाम हार्ड है। यहाँ देखो R1 साकिन, R2 मुतहर्रिक, ऑटोमेटिक साकिन इदगाम हो जाता वहां पे, तो वो है इदगाम लाजिम। R1 मुतहर्रिक, R2 मुतहर्रिक, दोनों भी हरकत वाले हैं, लेकिन उसके पहले वाला हर्फ जो है वो साकिन है, तो हरकत अपनी ट्रांसफर कर देगा पीछे वाले पे और खुद साकिन हो जाएगा। इजी हो गया। तीसरा है इदगाम ममनू, यानी कि यहाँ पे इदगाम हो ही नहीं सकता, ये दोनों मिल ही नहीं सकती। R1 मुतहर्रिक, R2 साकिन, यहाँ पे दोनों का मिलाप नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ममनू है यहाँ पे, इदगाम ममनू। ये तीन ही उसूल खाली बस। अब एक दो चार कुछ फेल है, हम उसको देख लेंगे प्रैक्टिकल, और फिर क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी बाब नून से इस्तेमाल हुआ, बाब ज़ाद से इस्तेमाल हुआ, और बाब सीन से इस्तेमाल हुआ। जन्ना, मद्दा, बाब ज़ाद से और बाब सीन से ये 6 फेल है, जिसमें से 2 बाब नून से यानी कि नसरा यंसुरु, और 2 बाब ज़ाद से ज़रबा यज़रिबु, और 2 बाब सीन से यानी कि समिआ यस्माउ। बाब नून से है ज़न्ना और मद्दा, बाब ज़ाद से ज़ल्ला और दल्ला, बाब सीन से वल्ला और मस्सा। ये 6 बाब याद रखना है, ये 6 फेल याद रखना है। ये 6 नहीं भी रखे तो कम से कम खाली 3 याद रखना है, ये 1, ये 2, ये 3। इसमें से कोई भी फेल, बाब नून में से 1, बाब ज़ाद में से 1, बाब सीन में से 1। अब इसकी 14 सीखों की गर्दान बनाना है, और आप लोगों को करना है वो 3 उसूलों के मुताबिक।
سب سے پہلا ہم لیں گے ظنّا. ماضی کا پہلا صیغہ ظننا. اب دیکھو R1 بھی متحرک، R2 بھی متحرک اور فا کلمہ بھی متحرک، تینوں بھی متحرک ہے. تو یہاں پہ ایک آپشن ہے ہمارے لیے کہ R1 کی حرکت کو زبردستی گرا دینا. تو یہ ساکن بن گیا، تو کیا بن جاتا؟ ظنّا. ادغام لازم. R1 ساکن، R2 متحرک. تیار کیا ہوا؟ ظن. ظنّا. اب اسی کچھ آگے لے کے چلنے کا ہے. تسنیہ کا صیغہ ظنّا. ظنّا. جمع ظنّو. واحد مؤنث ظنّت. ظنّت. تسنیہ مؤنث ظنّا. چھٹا صیغہ ظنّنا. ظنّا. تین نون ایک ساتھ آ گئے. ہوں. یہ مؤنث جمع مؤنث کا نون ہے، یہ R2 ہے اور یہ R1 ہے. R1. اب ہمارا جو قاعدہ تھا R1 متحرک ہے، R2 ساکن ہے، تو ادغام ممنوع ہے. وہاں پہ ادغام ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں نہیں مل سکتے. لیکن اس کے بعد والا دیکھو یہ دونوں پھر سیم ہے. تو یہاں پہ نون پہ ساکن ہے اور یہاں پہ نون پہ زبر ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں مل سکتے. ظننا. ہوں. اب حاضر مذکر ظننتا. ظننتا. R1 R2 دونوں الگ الگ ہے، مرج نہیں ہوا، ان کا ادغام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ R1 متحرک ہے، R2 ساکن ہے. ظننتما. ظننتم. ظننتی. ظننتما. ظننتما. ظننتن. ظننتن. ظننتو. ظننا. ظننا. یہ ہو گیا ماضی. اب مضارع ظنّا یظن. یظن. یہ ہے یظننو اوریجنل. R1 متحرک، R2 بھی متحرک، مثل اول بھی حرکت والا، مثل ثانی بھی حرکت والا، اور اس کے پہلے کیا ہے؟ سکون ہے. تو یہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دی گا. تو یہ کیا بن گیا؟ یظن یظنو. اب دونوں کا ادغام ہو سکتا. تسجید آ جاتی. کیا تیار ہو گیا؟ یظنو. یظن. یظنو سے 5 صیغے. تظنو. تظن. تظنو. اظن. نظن. اظنو. اظن. نظن. نظنو. تسنیہ ظنّان. یظنانی. تظنانی. تظنانی. تظنان. نانی آ رہی اس میں سب نانی. ہاں سب نانی نواسے سب آ گئے. اب جمع بنانا ہے. یظنون. کیا بنے گا؟ یظنون. یظنون. یظنون.
यजुनीना ऐसा हो रखो ऐसे यजुन। यजुन्ना अब यहाँ पे कायदा चेंज हो जाता। क्यों चेंज होता? क्योंकि R1 R2 और उसके पहले साकिन यज़नुन्ना। ना यज़नुन्ना है, R1 मुतहर्रिक है और R2 साकिन है। अब यहाँ पे इदगाम नहीं हो सकता। अगर इधर से इधर दे दिए तो फिर वो सीगा ही नहीं बनता। तो ये क्या बनेगा? यज़नुन्ना। ये है तैयार इसका, यज़नुन्ना। और वाहिद मुअन्नस तस्मीन तज़ुन्नीना। ये हो गया इसका माजी और मुजारे। और इसी तरीके से इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उसूल हमने सीखे, इदगाम लाजिम, इदगाम इख्तियारी और ममनू इदगाम, ये तीन ही उसूल है। ये तीन उसूल के तहत ये पूरा मुजाफ बन जाता। बाकी के तमाम सीगे जितने भी है आप इसी पैटर्न पे बना सकते हैं। कोई सवाल पूछना है किसी को? ये 6 फेल लीजिए, अपने नोटबुक में लिखना है और स्क्रीनशॉट ले लो ना, लिखते कहाँ बैठते। और ले लिए सर, हाँ ये भी ले लिए। जी। तो जैसा कि हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया और कल की क्लास आखिरी है। कल लास्ट क्लास रहेगी इस बैच की। सर इसके पहले वाला स्लाइड दिखाइए प्लीज। तो कल आप लोग सवाल लेके आएंगे और कुछ हम इसके अंदर जी। हाँ भाई, हम लोग आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं और अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने तकरीबन 4.5 महीने बहुत ही सब्र के साथ हमको बर्दाश्त किया। हम के अंदर मेरे को बर्दाश्त, आप ही सबको बर्दाश्त करना आसान है, ठीक है भाई। और मैं मेरे से छोटे हैं उनसे, जो बुजुर्ग है उनसे और बच्चों से बहुत दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि कभी नहीं कभी सर, मैं पेश नहीं आया सर, सर नहीं बोलना सर। नहीं सर, हकीकत है, जो हकीकत है मेरे में वो खामी। तो आप लोगों से माफी चाहता हूँ मैं, और आप मुझे माफ कर दीजिए। और मैं चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 मिनट लूंगा। मैं ये कहूंगा कि हम हमारे प्रोग्राम में क्या तब्दीली करें ताकि बच्चों को और अच्छा समझ में आए। आप कल बाकी बातें करने के बजाय तमाम फोकस उसका इस पे रहना कि आप ये करो, पॉइंट लिख के लाओ, हम लिख के लेंगे और इंशाअल्लाह वो हमारी इस्लाह हो और अल्लाह हमारे हिदायत दे।
کہ ہم اور بہتر طریقے سے پڑھائیں. سمجھ گئے؟ تو اس بات کا آپ سے میں منتظر ہوں. آپ ہمیں بتائیے, سمجھائیے, سجیشن دیجیے, انڈائریکٹ کمانڈ کیجیے, ڈائریکٹ کمانڈ کیجیے. انشاءاللہ ہم اس میں مدد کریں گے, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک آدمی غرور پاتا ہے علم کے ساتھ وہ خطرناک ہے. اس میں نرمی ہے, اس کے اندر سمجھداری آئے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ سب لوگ, میں امید کرتا ہوں ہمیں معاف کریں گے اور ہمیں ہدایت دیں گے, ہمیں بتائیں گے, اصلاح کریں گے کہ یہ کرو, اس سے اور بھی آگے لوگ پڑھیں گے. اور میرے لیے اور حافظ صاحب کے لیے آپ ایک کام کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, اپنے رشتے دار, دوست, جیسے ابھی نئے نئے پلیٹ فارمس آ گئے ہیں, جیسا انسٹاگرام آ گیا, لنکڈ ان آ گیا ہے, بہت ساری چیزیں بچے جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, اس پر ہم ایک ایڈورٹائزمنٹ بنا کے بھیجیں گے, آپ فارورڈ کیجیے اور نیکیاں لوٹیے. کیوں معلوم کیا؟ آپ کے توسط سے اگر پورے مل کر سب لوگوں نے 100 آدمی بھی اگر پڑھانے کو بٹھا دی اور 100 میں سے 75 بھی پڑھ لیے تو اجر عظیم. ٹھیک ہے بھائی؟ اور سب سے کہیے, یہ لوگوں کو فرقے وارانہ باتیں نہیں کرتے, یہ لوگ ٹیڑھی باتیں نہیں کرتے, ان کو صرف عربی اور قرآن سے مطلب ہے اور ان کا فرض ہے یہ پڑھانا. ٹھیک ہے بھائی؟ کل آپ اتنی باتیں کیجیے, باقی آپ سب اللہ خیرن کثیرا. جی الحمدللہ. تو جیسا کہ ہمارا اتنا وقت گزرا سیکھنے سکھانے میں ساتھ میں, تو کوئی بھی بات پڑھانے میں اگر کسی کو برا لگ گیا ہو یا کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو ہم لوگ آپ سے تہ دل سے معذرت چاہتے ہیں, تہ دل سے ہم لوگ آپ سے معافی چاہتے ہیں. نہیں سر, اللہ ہم سب کا حامی اور آپ ناصر ہم کو برداشت کرے سر, آپ ہم کو اتنا پڑھائے, برداشت بھی کر رہے ہم کو سب کو. آپ کا شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ کہ اچھے طریقے سے پڑھایا. جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ لوگ بس دعائیں کرتے چلیے ہم سب کے لیے ضرور ہے, کہ ضرور اللہ ضرور. تعالیٰ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سیکھنے سکھانے والے لوگ بنائیں, آمین. زیادہ سے زیادہ قرآن کے معلمین اللہ تعالیٰ تیار کر دے, اور ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ قبول کر لے. اللہ آمین تعالیٰ آمین. سلامت رکھے آیت سر, کا مزاج بنائے. آپ کی عمر دراز کرے. قرآن سیکھنے اور سکھانے والے اللہ کی نظر میں بہترین ہیں. بے شک بے اللہ شک. تعالیٰ اللہ اسی کا ہمارے مزاج اس بنائے. عمل کو آمین. قبول کر لے. اصل ہے جی قبولیت, سر. جی سر. کیسا کیے وہ معنی نہیں رکھتا, اصل ہے قبولیت. اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بعض مرتبہ قبول کر لیتا اور بعض مرتبہ بہت سارے بڑے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو دعا کیجئے خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول کرے, آمین. آمین. سر کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے, سر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہترین معلمین تیار کرے اللہ تعالیٰ, جو آمین. پوری دنیا میں جگہ جگہ پھیل کر قرآن کی خدمت انجام دے. انشاءاللہ. جی تو انشاءاللہ آج یہاں پہ رکیں گے. کل پھر آپ لوگ بھی اپنے کچھ سجیشنز ہے تو آپ دیجئے, اور کوئی سوالات بھی ہے آپ کے تو کل کیجئے انشاءاللہ. سر وہ آپ نے وہ بولے تھے نا پتہ ڈالو, میں پتہ ڈالی تھی ہمارا آپ کے جی واٹس جی ایپ نمبر پہ. جی ہاں, تو ہمارے پاس ہے, ایڈریس ہے آپ کا. کتاب کے ہے لیے کہ ہم سر, لوگ کو سر کیسے آپ بک بھیجیے سر, اس کے کل پھر سے ایک مرتبہ اعلان کریں گے اپن. کل ایک گروپ چیٹ میں اوپن بھی رکھیں گے, گروپ بنا کے آپ اس میں اپنے سب ڈال دیجئے, جو جو بھیجے ان کا ایڈریس ہے ہمارے پاس الحمدللہ. جی سر. جی اچھا سارے جو مین کلاس کا لنک ہے نا سر وہ ڈالیں گے, یہ لکھ کے دیجیے گا. جیسے لیویسیا ہے, ایشیا ہے, سجریہ ہے, اس میں کیا کیا گروپ میں ہے وہ سب ہم لوگ کو بتائیے گا. جی کل بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بتا دیجیے جی گا. سر بک بھیجنے کی کوشش کیجیے سر, اس کے کیا پیسے ہوتے ہیں ہم موبائل پہ ڈالتے ہیں آپ کے. بھیجیں گے انشاءاللہ, بھیج دیں گے. لیویسیا ہے, سجریہ ہے, نتیہ ہے, اور جو گروپ میں ہے جو دال ہے, تا ہے, یہ سب پورا لکھ کے دیجیے گا. جی 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 بالکل انشاءاللہ بھیج دیں گے, نوٹس اس کے بھیج دیں گے انشاءاللہ, جو بھی پڑھائیں گے. اچھا جس کے نام سے ہم لوگ کو بھیجنے ہوگا جو کتاب کل بھیجیے گا. بات کریں گے اس میں, آج کافی وقت ہو گیا. ٹھیک ہے جی,
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, वो क्या बोलते इसको, इसका प्रमोट करना है बोल के बता रहे थे आपसे, अभी सर जी बता जी रहे जी थे।